میں نے 3-4 سیگمنٹس میں اپنا ٹاپک رکھا تھا، لیکن آج بہت دیر سے پروگرام سٹارٹ ہوا تو اس وجہ سے میں شارٹ ہی کر رہا ہوں. اور سب سے پہلے میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا ڈاکٹر فیض، جیسے کہ انہوں نے بتایا کہ 2012 میں جب ان کا پروگرام تھا تو میں اس سیٹ پر وہاں بیٹھا تھا. میں حیران ہوا اور بہت خوش ہوا کہ اس قسم کے ڈاکٹر ہیں جو ہیموفیلیا کے بارے میں اتنی نالج یہاں پہلے میں پڑھتا تھا باہر CMC گلوبل کی بات اور پڑھ رہا تھا، اور اس کے بعد یورپین کنٹریز کا. لیکن جب اس ٹائم انہوں نے لیکچر اپنا ڈیلیور کیا، اس ٹائم جب انہوں نے ہیموفیلیا کے بارے میں اور بولا تو میں بہت خوش ہوا. بیچ میں کنیکٹیویٹی نہیں رہی کیونکہ یا تو نامساعد حالات آئے اور پھر ہم نے بہت لیٹ سوسائٹی رجسٹرڈ کی. تو ہم بہت بار چاہ رہے تھے کہ ڈاکٹر صاحب کو ہم بلائیں یہاں. ڈاکٹر بلال نے بھی بہت بار بولا ڈاکٹر فیض صاحب کو آپ بلائیے، اور انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں یہ ایک ہم سرکل بنائیں گے اور ڈاکٹر صاحب کو لیں گے ساتھ، کیونکہ جوائنٹ کریکشن بہت پیشنٹس کو ضروری ہے یا چھوٹی موٹی سرجریز، اور کیونکہ ہم انشاءاللہ جو بنیاد ڈاکٹر بلال صاحب نے ڈالی ہے کمپریہنسو ٹریٹمنٹ کی، ظاہر سی بات ہے، صحیح بات ہے کہ ایک سے کام نہیں چلے گا، لیکن جو ڈاکٹر صاحب نے بنیاد ڈالی ہے یہاں پر، یہ سینٹر ہمارا 5ویں نمبر پر آتا ہے انڈیا میں اس لحاظ سے، یہ میں آپ کو بتایا. لیکن یہ سب کچھ جو صحرا جو کریڈٹ ڈاکٹر بلال کے سر جاتا ہے، کیونکہ ورلڈ فیڈریشن آف ہیموفیلیا کی گائیڈ لائن ہے ہر 24 کلومیٹر کے بعد 20 کلومیٹر کے بعد ایک ہیموفیلیا ٹریٹمنٹ سینٹر ہونا چاہیے. جب انڈیا میں کیا ہوا کہ ہر ڈسٹرکٹ لیول پر کچھ اسٹیٹس میں انہوں نے سینٹرز بنائے، لیکن جب کووڈ آیا، کیونکہ یہ چیزیں پتہ نہیں ہوتا ہے کیا ہونے والا ہے، جب کووڈ آیا تو اس ٹائم وہ سب فیل ہو چکے. پوری جو ورلڈ فیڈریشن آف ہیموفیلیا کی وہ گائیڈ لائن تھی کہ 20 کلومیٹر کے احاطے میں ایک سینٹر ہونا چاہیے، وہ دھرے کے دھرے رہ گئے. اس ٹائم جو یہاں پر 2 سال پہلے، اس سے 2 سال پہلے انیشیٹ کیا تھا ڈاکٹر بلال صاحب نے کہ ہم ہوم تھراپی اسٹارٹ کریں، وہ کام. پھر بعد میں نے دیکھا کہ ڈاکٹر صاحب کے ساتھ کانٹیکٹ کیا، بہت سارے پروگرام میں ورچوئل پروگرام میں میں دیکھ رہا تھا کہ وہ ان سے پوچھ رہے تھے، ڈکٹیشن لے رہے تھے، ڈاکٹر صاحب آپ نے یہ کیسے کیا. ساؤتھ کے ڈیولپڈ جو جہاں کمپریہنسو ٹریٹمنٹ ہے کچھ سینٹرز میں، تو وہاں ڈیتھ ہوئی ہے پیشنٹس کی. دہلی میں، ممبئی میں، لیکن واحد یہ سینٹر ہے، اور بھی سینٹر ہوں گے میرے کے بھی کہوں گا میں، لیکن یہاں پراپر ٹریٹمنٹ ملنے کی وجہ سے اور ڈاکٹر بلال صاحب کے پیسوں کی وجہ سے ایک بھی پیشنٹ کی ڈیتھ نہیں. اور پچھلے 2 سال سے کسی بھی پیشنٹ کی کوئی ڈیتھ نہیں. وجہ کیا ہے کہ ڈاکٹر صاحب نے جو انیشیٹوز جو اقدامات اٹھائے ہیں وہ سود مند ثابت ہوئے، فروٹفل ثابت ہوئے. آج باقی اسٹیٹس جو ہے وہ ڈاکٹر صاحب سے ڈکٹیشن لے رہے ہیں. میں آپ کو بتاتا چلوں، ڈاکٹر صاحب کو بھی شاید یہ پتہ نہیں ہوگا، ہم بھی اپنی طرف سے جو رپورٹس دے رہے ہیں تو اس کے مطابق جو آنے والا سال ہے اس میں ایک پبلیکیشن بھی ایک انٹرنیشنل جرنل میں ڈاکٹر صاحب کی ہوگی، کیونکہ ان کی کارکردگی جو یہ آپ کو میں بتانا چاہوں گا. میں بتاتا چلوں کہ انیشیٹوز میں سے سب سے اہم انیشیٹو ان کا یہ تھا کہ جو ہم 6 یا 5 مہینے کی سپلائی اپنے پاس رکھیں گے، تاکہ جب ہم آرڈر دیتے ہیں یہاں سے ریکویزیشن بھیجتے ہیں تو اس میں میڈیکل کارپوریشن کم از کم 3 سے 4 مہینے لگتے ہیں. کبھی ریٹ کانٹریکٹ نہیں ہوتا ہے، کبھی پروکیورمنٹ میں ڈیلے ہوتا ہے، تو ہم رکھیں گے جس سے یہاں ہمیں فیکٹر کی شارٹیج نہ ہو جائے. یہ انہوں نے انیشیٹو لے لیا. لیکن اس کے باوجود بھی میں کہہ رہا ہوں کہ ایڈمنسٹریشن میں بیٹھے آفیسر جن کو پتہ نہیں ہیموفیلیا کیا ہے، جب لاک ڈاؤن لگا میں آپ کو بتاتا ہوں ہمارے پیشنٹ کبھی کبھی جاتے تھے کسی ناکے پر پولیس چوکی پر کی کاپی لے کر، جی ہاں جی ہیموفیلیا ہے ٹریٹمنٹ کے لیے جانا ہے، وہ نہیں ڈنڈا دکھا دے، جاؤ 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 مرو جی. ان کو پتہ نہیں. تو اس ٹائم جو ڈیسیجن نے لیا کہ ہوم تھراپی، ہم نے اپنی ایمبولینس رکھی وہیں 24 گھنٹے رات کے 12 بجے 2 بجے بھی میں اپنے جو میرے ساتھی ممبر ہیں، خاص کر 5 ممبر دن رات کام کرتے ہیں اس کے لیے. تو وہ جب میں ان کو کال کرتا تھا کہ آپ کہاں پر ہیں، ایک دفعہ یہ اڑی میں تھے 2 بجے، یہ پھنس چکے تھے، آگے کوئی گاڑی ملٹری فوجی گاڑی تھی تو یہ پھنس چکے تھے. میں ان کو میں نے اتنا انسسٹ کیا آپ مسجد میں رہو یا کوئی پیشنٹ جو نزدیک میں وہیں رہو.
बारिश बरस रही थी आसमान से, इन्होंने अपनी जान की परवाह किए बगैर पेशेंट्स तक मेडिसिन पहुंचाई। लेकिन ये सब तब भी मुमकिन हुआ जब डॉक्टर साहब ने ये इनिशिएटिव्स लिए थे। कहने का मतलब ये है कि कॉम्प्रिहेंशन की एक बुनियाद डाली, लेकिन कुछ चीज़ों की कमी है। सबसे पहले जो ड्रग हम लेते हैं वो मेडिकल कॉर्पोरेशन से आता है। इस साल 1 साल के बाद मॉर्निंग पेशेंट्स को राहत मिली जब मेडिसिन आई, वो भी कॉर्पोरेशन से नहीं आई है, क्योंकि इतना कंट्रोवर्शियल बन गया कि 1 साल तक उनको रेट कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं बना। जब रेट कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना तो एनओसी भी नहीं प्रोवाइड कर रहे थे। फाइनली डॉक्टर साहब के एफर्ट से उन्होंने एनओसी जब प्रोवाइड की तो 15 दिन में यहाँ उन्होंने परचेज किया। वो 7 दिन में ही होना था, लेकिन एक प्रोक्योरमेंट ऑफिसर के हेल्थ इश्यूज की वजह से नहीं हो पाया। लेकिन खाली 15 दिन में वो मेडिसिन आई और उन्होंने उन पेशेंट्स को राहत की सांस ली। उन पेशेंट्स का क्या हाल बना इन 1 साल में वो वही जानते हैं। उस 1 साल में हीमोफिलिया सोसाइटी ने उनको फैक्टर दे दिया इमरजेंसी बेसिस पर, उनका प्रोफिलैक्सिस स्टॉप करना पड़ा। इसमें एक बच्चा है जो 5 बार एडमिट करना पड़ा हमें जीवीमल हॉस्पिटल में। लास्ट टाइम आईसीयू में भी था, जब फैक्टर आई तो उस टाइम आईसीयू में था। तो ये चीजें एडमिनिस्ट्रेशन में बैठे ऑफिसर ऐसे होते हैं कि उनको ये चीजें पता नहीं है। वो कभी कहते हैं हमने फैक्टर भेज दिया। अरे भाई अल्लाह के बंदे, ये एक फैक्टर नहीं होता है, इसमें बहुत सारे फैक्टर हैं। तो वो ये समझते नहीं है। मैं यहाँ समझने से कासिर हूँ। गवर्नमेंट 25% बजट हॉस्पिटल को देती है कि आप इसका मेडिसिन प्रोक्योर करना है। हीमोफिलिया की मैं बात करूँगा, बाकी की मैं बात नहीं करता। बाकी 75% मेडिकल कॉर्पोरेशन को जाता है। अगर 25% मेडिकल कॉलेज को आता है तो फिर जाहिर सी बात है ये फैक्टर प्रोक्योर करना है इमरजेंसी बेस पर, या जिसका रेट कॉन्ट्रैक्ट नहीं है कॉर्पोरेशन को वो फैक्टर करना है। लेकिन उस पर भी कॉर्पोरेशन ने उंगली उठाई कि ये क्यों कर रहे हैं, इनको नहीं करना है। फिर ये मैं समझने से कहां से लगा कि गवर्नमेंट 25% क्यों दे रही है। होना तो ये था कि इमरजेंसी बेस पर यहाँ परचेज होना चाहिए ताकि पेशेंट्स की जिंदगी को खतरा ना रहे। पेशेंट्स की जिंदगी को किस तरीके से खतरा, सिर्फ मतलब ब्लीडिंग होगी तो बस मर गए पेशेंट, क्या लाइफ टाइम ब्लीडिंग मर नहीं। इनको जब एफेक्ट भी हम लगाते हैं उस दौरान, उससे क्या हुआ, हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस बी और भी मोहल्लिक वायरस HIV की तरफ भी पेशेंट गए जिनको वो वायरस हुआ। वो क्यों हुआ, वो एफेक्ट भी लगाने से हुआ। और उससे बचने के लिए इंतहाई हम कोशिश करें कि फैक्टर रेगुलर यहाँ रहे। तो सिर्फ ये नहीं कि बस इसको ब्लीड हुआ तो डेथ हुई, जो इनके जिसम पे वायरस दाखिल हो जाते हैं खून में, तो वो उनका साइलेंट किलर उनके अंदर दाखिल हो जाता है। तो मिजरीज वो उनके माँ बाप बर्दाश्त कर देख रहे हैं, बर्दाश्त कर रहे हैं, उनमें इजाफा हो जाता है। 150 पेशेंट्स को हेपेटाइटिस सी हुआ था, इससे पहले जब यहाँ फैक्टर नहीं हुआ करता था, उनका ट्रीटमेंट हीमोफिलिया सोसाइटी ने फ्री ऑफ कॉस्ट किया। अगर ये न होता, अगर फैक्टर रेगुलर रहता, आज भी 4 साल का या 5 साल का एक बच्चा है जिनको हेपेटाइटिस सी है। वो वजह क्या है, वजह यही है कि कॉर्पोरेशन के डिले टैक्स जो है प्रोक्योरमेंट में, तो समझने से वो, हालांकि हम भी बार बार गए, उनको रिप्रेजेंटेशन भी दी, तो लेकिन अभी तक वो उस तरीके से, मतलब मेरे ख्याल से उनके कानून तक जूम तक नहीं दी है। बट मैं उम्मीद करता हूँ कि डॉक्टर साहब ने जो इनिशिएटिव्स लिए हैं और इस पर जोर देंगे, जो 25% गवर्नमेंट हमें आपके मेडिकल कॉलेज को दे रहे हैं कि आप पर प्रोक्योर करें, तो इस पर जोर देंगे कि एटलीस्ट कोई इन 25% का मेडिसिन प्रोक्योर करें। बाकी जो डॉक्टर साहब ने काम किया है, सर अंजाम दी है, और हमारे पास वर्डिंग कैसे इनका शुक्रिया अदा करें, हम उनके बारे में मिलत डॉक्टर साहब की बात कर रहा हूं। पीडियाट्रिक सर्जन जब से यहाँ आए हैं, रात को भी मैं इनको कॉल करता हूँ, शाम के टाइम में भी इनको कॉल करता हूँ। हमारा पेशेंट है, इनकी सेटअप सेशन है, काइंडली इनको दे दीजिए आप डेट, नजदीक इनके दूर रहा है। बाकी चीज, और किसी भी पेशेंट को, बच्चे को कोई सर्जिकल प्रॉब्लम हो जाती है, मैं इनको फोन करता हूँ और इनसे पूछता हूँ कि मैं पेशेंट को कब भेजूँ। अगर की ओपीडी भी नहीं होती है, ये इनको वार्ड में भी देते हैं पेशेंट, हमारे पेशेंट्स को। मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ इन डॉक्टर्स का, डॉक्टर फैज साहब, डॉक्टर बिलाल साहब, डॉक्टर रियाज साहब, ये यहाँ आए और पेशेंट की नॉलेज में इतना इजाफा हुआ, इतना। और इंशाल्लाह आइंदा हम ऐसे प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज करते रहेंगे, और CME भी हम इस महीने के बाद यहाँ ऑर्गेनाइज करेंगे, CME का इनकार करेंगे इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया आपका और पेशेंट्स का भी। और आखिर
closing तो माइक में डॉक्टर सिंह की हवाले करता हूँ. बहुत बहुत शुक्रिया. Thank you very much, Mr. Syed Qadri. You know, once Katrina Mayer said that at the end of the day, the only question I'll ask to myself are, did I laugh enough for the day? Did I love enough? And the most important thing, what I'll ask to myself is, did I make a difference? So I think, as a team, we will surely make a difference. Now I request our respected audience to ask questions, if any, to our dignitaries. मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, आपसे इस्तदा है कि अगर आप में से कोई भी आज के टॉपिक के बारे में हमारे डॉक्टर साहिबान से कोई भी सवाल पूछना चाहते हैं, तो आपको उनका तहे दिल से इस्तकबाल है. और सैयद माजिद कादरी साहब, you can ask on the behalf of audience. The house is open. हाँ. पहले मैं शुक्रगुजार हूँ यहाँ पर जो डॉक्टर्स हैं और जो यहाँ पर मोटिवेट की सैयद माजिद को बहुत शुक्रगुजार हैं, क्योंकि उन्होंने हर बार हमारी मदद की, हमें अवेयर किया. और यहाँ पर ये बोल रहे थे कि बोल रहे थे कि जब भी वो रेस्टोरेंट होते हैं उनके पास एक कार्ड होना चाहिए. बस सर हम ये बोलना चाहते हैं, खुदा न खासा अगर हमारे पेशेंट को कभी भी एक्सीडेंट हुआ तो हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में ना कोई फैसिलिटीज है, कोई दवाई भी है, ना डॉक्टर अवेयर है इसके बारे में. तो उस वक्त हम क्या करते हैं, क्योंकि जब हमने ये फेस किया, जब हमने अपने पेशेंट को अपने हॉस्पिटल में लिया, 2 साल तक हम सफर करते रहे. 2 साल तक हमें कोई ट्रीटमेंट नहीं मिला, कोई डायग्नोज नहीं हुआ. 3 महीने की बात है, ब्लड आ रहा था, वो बोल रहे थे कोई चीज है, लिवर में प्रॉब्लम है, कुछ. फिर हमने सिर्फ मंच को फोन किया, हमें बोला नहीं, आपका एक बच्चा है हिमोफीलिया, ये भी वही होता है, ऑक्सीजन को यहाँ पर लाइए. तो हमें श्रीनगर से बाहर का भी फैसिलिटी कैसे होगी. और ये भी बोल रहे थे डॉक्टर साहब कि आधे से ज़्यादा जो बच्चे हैं जो भी डायग्नोज नहीं है. तो जो आप यहाँ पर अवेयरनेस कम कर रहे हैं, तो आप जो अवेयरनेस कम यहाँ पर कर रहे हैं, हमें पता है, आप हमें जो मालूमात दी हम बहुत खुश हैं. पर सर जो आम लोग हैं उनका ये फंक्शन आप पूछेंगे. जो हमारे लोकल हॉस्पिटल है, जो डॉक्टर से भी आप बोल रहे हैं कि वहाँ पर जो ड्रेसर है उनको पता होना चाहिए कि हमें इसकी ड्रेसिंग कैसी करनी है, दवा अवेलेबल होना चाहिए. तो उन तक ये फंक्शन कब पहुँचेगा, कब ये फैसिलिटी हमारे पास होगी. तो इसके लिए आपका ये जो क्वेश्चन है ये तो बहुत जेन्युइन क्वेश्चन है. तो इससे हमने, जैसे माजिद ने ऑलरेडी बोला, हमने इस पे काम किया. ये हमें कंसर्न था क्योंकि मैक्सिमम जो बीमार हैं या हीमोफिलिक्स हैं वो फार फ्लंग एरिया से, तो वो हम दर्द समझ सकते हैं. वो कितने दूर से उनको यहाँ दवा लेनी पड़ती है, उनको कोई प्रॉब्लम वहाँ पे होगा तो ट्रांसपोर्ट, खास करके हमने लॉकडाउन में देखा जब 370 आर्टिकल का हुआ या कोरोना की वजह से हुआ. तो बदकिस्मती ये है कि हमारा प्रोजेक्ट पूरा तैयार था, क्योंकि हमने ये ठान ली थी कि हम ये अवेयरनेस प्रोग्राम्स डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से स्टार्ट करेंगे. डिस्ट्रिक्ट उस वक्त मेडिकल कॉलेज नहीं बने थे उस वक्त. अब तो दूसरी खुशकिस्मती की ये बात है कि अब तो हमारे 2 मेडिकल कॉलेज आए हैं, अनंतनाग और बारामूला में. तो हम अगर हालात साजगार रहे इंशाल्लाह इस साल से हम इस पे हम पूरा जोर देंगे कि एटलीस्ट डिस्ट्रिक्ट्स जो है नॉर्थ साउथ, एटलीस्ट एक वहाँ पे ट्रांसफ्यूजन सेंटर या इन्फ्यूजन, उसको हम इन्फ्यूजन सेंटर बोलते हैं, ड्रग्स वहाँ पे अवेलेबल रखें. वो कोऑर्डिनेट करेंगे हम नोडल सेंटर से, जीएमसी श्रीनगर से. तो हम उनको सप्लाई यहाँ से देंगे, वहाँ पे रखेंगे, उनको ऑडिट भी हम करेंगे. तो जो वहाँ के नॉर्थ के फॉर एग्जाम्पल पेशेंट्स होंगे उनकी एक्सेस वहाँ पे होगी, और साउथ के जो पेशेंट्स हैं उनको साउथ पे एक्सेस होगी. तो वही अनफॉर्चुनेट हुआ कि हालात नामुनासिब बन गए दुनिया में. तो वरना ये प्रोजेक्ट हमने स्टार्ट किया, तो ये जेन्युइन कंसर्न है. तो इंशाल्लाह हालात ठीक रहे तो इस पे हम इस साल जरूरी काम करें. एक और बात मैं मैडम को बोलना चाहूँगा कि उन्होंने जो क्वेश्चन किया है कि ये कब हम तक ये फैसिलिटी पहुँचेगी. मैं अभी बात कर रहा था
डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में ये अवेलेबल हुआ करता था इंडिया में बहुत सारे स्टेट्स पे, जबकि वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ हीमोफीलिया की गाइडलाइन थी कि हर 20 किलोमीटर के अहाते में एक सेंटर होना चाहिए था। जब ये कोविड आया वो सब डरे के डरे रह गए। उस वक्त हमने जो डॉक्टर साहब ने जो फैसला लिया था कि होम थेरेपी, उसी को अडॉप्ट करने लगे सब। पूरी इंडिया में अब ये चल रहा है कि नहीं होम थेरेपी ही बेस्ट है, उससे पेशेंट्स की जिंदगी बच सकती है। तो सबसे बेस्ट है कि होम थेरेपी। और अगर आप डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में मेडिसिन अवेलेबल कराएं, आप क्या करेंगे जब वहां एक्सपर्ट्स नहीं होंगे, जब आपके बच्चे को ब्लीड हुआ लाइफ थ्रेट ब्लीड, आप वहां क्या करेंगे? तो सब प्री ट्रीटमेंट जो है वो यहाँ आपको मिलना है। मैं आपको बताऊं, मुंबई, दिल्ली, बाकी स्टेट्स में भी पेशेंट्स थे तो कोविड में की डेथ हुई है। हमें 4 ब्लीड्स हुई है इन 2 साल में, ऐसी ब्लीड जहां बचना नामुमकिन होता है पेशेंट के लिए यहाँ, लेकिन वो 4 बच गए हैं। मैं पहली बार देख रहा हूँ, इससे बढ़ कहीं भी ट्रीटमेंट आपको नहीं मिलेगा। आपको आज घर में दवाई है, आज आपके पेशेंट सर्वाइव कर रहे हैं। पिछले 2 साल से मैंने अभी बोला किसी भी पेशेंट कोई अनट्रीटेड नहीं हुई है। ये किस वजह से? जो यहाँ पर डॉक्टर साहब और इनकी टीम जो ये कर रहे हैं, अभी डॉक्टर रियाज साहब का भी आपने सुना, डॉक्टर फैज साहब का भी, हम एक सर्कल बना रहे हैं जो चीजें आपको अपने डिस्ट्रिक्ट में मिलेगा, क्योंकि ये वेस्टर्न कंट्रीज नहीं है। यहाँ ऐसी फैसिलिटीज हासिल करने में हमें कितना टाइम लगा, हम किस तरह से हम जानते हैं। शुक्रिया। एक्चुअली आपके पास होम थेरेपी हम कर रहे हैं, होम थेरेपी हम रखेंगे हर किसी पेशेंट को, लेकिन कभी एक्सीडेंटल इमरजेंसीज में या कुछ ड्रामा में कुछ उस वक्त नजदीक में जरूरत पड़ती है तो वो हम देख लेंगे। लेकिन माजिद ने भी ठीक कहा कि जो होम थेरेपी है उससे कि जब हर किसी जो हमारे रजिस्टर्ड पेशेंट है उसके पास जब अवेलेबल होगा 3 या 4 महीने की दवाई, तो अनफॉर्चुनेटली या कुछ कभी एक्सीडेंटली कोई ट्रामा आ गया या ब्लीड हो गया तो आप उस वक्त वो दवाई यूज कर सकते हैं विद डॉक्यूमेंटेशन और कुछ वहाँ पे। लेकिन वो बात भी सही है कि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में अभी उनकी अवेयरनेस नहीं है कि वो डरते हैं जब हीमोफीलिया उनके सामने आ जाता है, वो डर से जाते हैं, वो आपको हाथ नहीं लगाएंगे अगर उनको फैक्टर भी होगा। इवन हमारे यहाँ कैजुअलिटी में डॉक्टर्स हैं, मैं देखता हूँ कि वो भी डरते हैं कभी फैक्टर लगाने में। हमने बहुत से ऐसे देखे, माजिद मुझे कॉल करता है रात को, फिर मैं कंसल्टेंट को करता हूँ, जो हेड ऑफ यूनिट होगा उसको फोन करता हूँ, इसमें कोई टेंशन नहीं, इसमें सारा लगा दो हमारे से वाले। तो यहाँ पे डरते हैं लोग, तो आप डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की बात ही नहीं है, वहाँ पे लोग उनको अवेयरनेस नहीं है। तो हमारा जो पहला प्रोग्राम इस साल होगा इंशाल्लाह, वी विल गो बाय डिस्ट्रिक्ट और हम अवेयर करेंगे डॉक्टर्स, पैरामेडिकल, नर्सिंग स्टाफ जो भी है उनको अवेयर करेंगे रिगार्डिंग इन्फ्यूजन ऑफ द एंटी हीमोफिलिक फैक्टर्स कैसे करते हैं। तो वो जब पहले हो जाए फिर उसके बाद हम दूसरा स्टेप लेंगे अवेलेबिलिटी। थैंक यू। Anyone else? आप में से किसी और को कोई सवाल पूछना है? They said, if we have no winter, the spring will not be so pleasant. If we did not sometimes take adversities. अस्सलामुअलैकुम। शुक्रगुजार हूँ नमक पैसे न पैसे न विषय में आज एक पैसे किए शुक्रगुजार से माजिद साहब डॉक्टर साहब वशीम पकान ने शुक्रगुजारी आज के न पैसे प्रॉब्लम में कौन They said, if we have no winter, the spring will not